Periodic and non-periodic functions. Yes, good. Then Odd function, even function. odd and even function, good. Fourier series. Fourier series, good. Then we also discuss one more concept. Euler's formula. Yes, good. Then you forgot the main part of existence of Fourier series. What is it? Its name is Dirichlet yes, condition. yes, Dirichlet conditions. Okay, so we discuss these all the concepts in last lecture. Okay, so we start with next one, and you can see my screen is visible. Dear student, screen is visible or not? Yes, sir, visible. Okay, then we discuss up to here. Am I right? Dirichlet's condition. What is it? You can express any function in the form a0 by 2 plus summation n equal to 0, n equal to 1 to infinity a n cos nx plus b n sin nx, where a0, a n and b n are real constants provided. मीन्स उसके लिए इस तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन व्हाट आर द कंडीशंस? f of x must be periodic, single valued and finite. F of x has a finite number of discontinuities in any one period, and f of x has finite number of maxima and minima in any one period. Okay, and all the above conditions are valid for minus pi to pi, minus L to L, 0 to 2L, okay, as per our syllabus. Okay, now what are the applications? Why we are studying Fourier series? Okay, so there are many applications of Fourier series in your branch as well as in any engineering branch. Okay, so Fourier series are used in the analysis of periodic functions. Many of the phenomena studied in engineering and science are periodic in nature. For example, current and voltage in alternating current circuit. These periodic functions can be analyzed into their constituent components. For example, fundamentals components or harmonic components by a process called Fourier analysis. You can transform that into these of the two components, and you can analyze that by using the Fourier analysis. We are aiming to find an approximate using trigonometric functions for various square, sawtooth, waveforms. Okay, we do this by adding more and more trigonometric functions together. Means if you can add cos plus sine plus tan, and you can find your solution. The sum of these special trigonometric functions is called the Fourier series. But in Fourier series you can add only two trigonometric functions, and they are cos and sine. Okay, Fourier series is used to find the solution of well-known engineering problems: heat equation, wave equations and Laplace equation. These three equations are core of the engineering in any branch. Okay, heat equation, wave equation, Laplace equation. More than this, you can also discuss the wavelength or vibrations theory by using the Fourier series, okay, which is not mentioned in this list. But if you want to talk about the vibrations problem, then there is a Fourier series. Okay, and also its Fourier series suggests that, or Fourier series says that any signal can be decomposed into sum of sinusoidals. Okay, sinusoidals means cos theta, sin theta. Okay, it is very another characteristics. Okay, so these are the applications of Fourier series. Okay, now we go for the example how you can find the Fourier series. So there are 5 steps to find the Fourier series in of any function. Okay, first one is state Fourier series expressed with value of expression आएगा, yes, expression. Okay, there is a mistake. State Fourier series expression with value of L.
Then step number 2 will be find the value of a0. Step number 3 will be find the value of an. Step number 4, find the value of bn. And step number 5, substitute all these values of a0, an and bn in Fourier series. Then that is the final Fourier series expression of given function. Okay, अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि if required मीन्स कुछ मेथड्स ऐसे भी हैं जिसमें आपको फाइंड करना जरूरी नहीं है. ओके, दैट मीन्स a0 an आपको वहाँ पे सीधा 0 मिल जाता होगा, bn 0 मिल जाता होगा. ओके, you have bn 0, you have a0 and an 0 directly, then you cannot need to find the coefficient, Fourier coefficient a0, an and bn in that situation. Okay, so these are the steps for Fourier series and ये आपको दिमाग में फिट कर देना है, keep in your mind. Okay, तो ये 5 steps से पूरा यूनिट है आपका, ये 5 स्टेप ही करना है पूरे यूनिट में. तो आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो और लिखना है तो लिख भी सकते हो कि स्टेट Fourier सीरीज एक्सप्रेशन. ओके, एक्सप्रेशन विथ वैल्यू ऑफ एल मीन्स आपको वहाँ पे एल मेंशन कर देना है. और देन स्टेप नंबर 2 है फाइंड a0, find an, find bn, and last one is the substitute all these values of a0, an and bn into the Fourier series expression. Okay, Fourier series expansion. Then you got your final Fourier series expansion of given function in given interval. Any doubt up to here, student? No, sir. What about others? Okay, तो आपको इसमें क्या करना है, तो 5 स्टेप में पूरा एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, काउंट करना है. ओके, ये सम को कंप्लीट करना है. तो अब उसको कैसे करेंगे? ओके, 1 मिनट, आई कॉल टू 20d 1 मिनट 20tde, यस 503. ओके, डन. तो ये आपके 5 स्टेप्स है. ये 5 स्टेप्स में पूरा एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है. ओके, 1 मिनट, वी वेट फॉर, यस 503 इज इन, डन. So there are 5 steps to solve the Fourier series examples. First one is state Fourier series expression. Second one is find a0. Third one is find an. Fourth one is find bn, and fifth one is substitute all values in Fourier series expansion. Okay, now in last lecture I discussed some formulas. I repeat it. First one is cos nx integration c to c plus 2 pi cos nx dx will be 0, c to c plus 2 pi sin nx will be 0, c to c plus 2 pi cos nx into cos mx dx 0 and pi. ये सारी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था. इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi sin nx sin mx dx 0 and pi. Okay, when m not equal to 0 and m equal to n, sorry, m not equal to n and m equal to n. And then integration c to c plus 2 pi sin nx cos mx dx equal to 0 we already discussed in last lecture, and these both are the very well known and very useful formula. I already mentioned you. Okay, now these both are I added today. Okay, so integration a to b uv dx. Okay, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. लेकिन अब तक आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते थे? तो इंटीग्रेशन uv dx यू वांट टू फाइंड इंटीग्रेशन uv dx, देन आप सीधा करते थे u into integration v dx, am I right, minus integration du by dx into integration v dx और उसके बाहर भी dx. 2 times different इंटीग्रेशन है यहाँ पे. डन. ओके, तो दिस इज द सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल. ओके, नाउ आई एक्सटेंड इट. ओके, ये वन ऑफ द मैथमेटिशियन ने इसको एक्सटेंड किया है. ओके, तो इंटीग्रेशन a to b uv dx is equal to u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 minus and so on. That means plus minus is there. और जो लिमिट है वो तो बाहर ही रख देंगे a to b. अब जो फर्स्ट टर्म है जिसको आप u सिलेक्ट कर रहे हो, देन डिफ्रेंशिएट इट 1 by 1. दैट मीन्स फर्स्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा, सेकंड में डिफ्रेंशिएशन आएगा, थर्ड में टू टाइम्स डिफ्रेंशिएशन एंड सो ऑन. अब v1 v2 v3 क्या है? तो v1 इज द इंटीग्रेशन ऑफ v
v2 is the integration of v1, v3 is the integration of v2 and so on. मीन्स जो भी आप प्रीवियस टर्म आपको मिल रहा है उसका वन टाइम इंटीग्रेशन मोर. ओके, तो आपको उस तरीके से ये एक्सपांशन वर्जन, इसको बोलते हैं लिबनीज रूल. ओके, ये है इंटीग्रेशन a to b uv dx, एक्सटेंशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ओके, नाउ ninth formula number 9, sin n pi. Sin n pi will be always 0. Means if you have sin pi, then 0, sin 2 pi 0, sin 3 pi 0, sin 1000 pi 0. ओके, तो ये सारे जितने भी यहाँ पे आप n सब्सटीट्यूट करें वो सारे के लिए वो 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ पाई. ओके, नाउ सेम वे sin n plus 1, n plus 1 और n minus 1 जो भी आप लो पाई वो भी 0 हो जाएगा. सेम वे cos n पाई, ये थोड़ा समझना जरूरी है. cos n पाई इज इक्वल टू -1 रेज़ टू n. तो आप जानते ही हो कि cos 0 क्या होगा, कौन बताएगा? cos 0 1. 1. Yes. Okay, then cos pi -1. Good. Cos 2 pi 1. 1. Okay. Cos 3 pi -1. Okay. तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे उसको मैं जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूँ कि -1 रेज़ टू n. अब देखो फर्स्ट हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 0, तो -1 रेज़ टू 0 1 हो जाएगा. ओके, अब n की जगह पे अगर मैं 1 रिप्लेस करूँ तो मेरा cos पाई आया, तो cos पाई की वैल्यू में मुझे -1 मिल रहा है, तो यहाँ पर आप n इज इक्वल टू 1 रिप्लेस करेंगे तो ऊपर भी -1 मिलेगा. अब 2 पाई मुझे फाइंड करना है, तो n की जगह पे 2 रिप्लेस करूंगा तो -1 स्क्वायर हो जाएगा, इट गिव्स 1. ओके, सेम तरीके से cos 3 पाई मुझे फाइंड करना है, तो n की जगह पे 3, तो -1 रेज़ टू 3 गिव्स -1 एंड सो ऑन. तो जब भी आप cos के लिए कुछ भी दिया जाए तो आपको इस तरीके से फाइंड करके वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. अगर आपको n नहीं दिया है देन पुट एज -1 रेज़ टू n. डन. एनी डाउट इन 8 and 9 फॉर्मूला? स्टूडेंट 8 and 9 में अगर प्रॉब्लम है तो आई विल रिपीट इट डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसी के ऊपर है ये जो 4 फॉर्मूला है ना, 6, 7, 8 and 9, उसी पे पूरा आपका यूनिट है ये. अगर ये 4 फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से डील करना पता चल गया देन यू गॉट योर मार्क्स और यू कैन गेन योर स्कोर. ओके, तो एनी डाउट in formula number 6, 7, 8, 9? No doubt. No doubt. Okay, Vidhi have no doubt. Darshil, Yagnesh, Prithviraj, Yasraj. No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt, sir. Okay, 500 and No doubt, sir. 503. D2D 500 and 503. No, sir. No doubt. Okay, and where are you there? 500. Okay, once again. Okay, then we go for first example. Okay, obtain Fourier series for f of x is equal to e raised to minus x in the interval 0 less than x less than 2 pi. Means you have to find the Fourier series expansion of e raised to minus x for the interval 0 less than x less than 2 pi. So first of all you have to find L. अब L कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको बता रहा हूं कि हमारा जो मैन है वो C लेस देन x लेस देन C प्लस 2L. ये आपके दिमाग में रखना है कि जो पूरे जितने भी एग्जाम्पल है उसमें इसके साथ उसको कंपेयर करना है. तो व्हाट इज माय C? तो यहाँ पे आप 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई दिया है, तो C को आप कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दिस इज योर C एंड दिस इज योर C प्लस 2L. ओके, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0 एंड C प्लस 2L क्या हो गया मेरा 2 पाई. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट C इज इक्वल टू 0 इन सेकंड एक्सप्रेशन देन वी गेट 2L इज इक्वल टू 2 पाई एंड इट गिव्स L इज इक्वल टू पाई. तो मुझे L मिल गया. एनी डाउट?
एल में किसी को डाउट है? नो? No, ओके sir. ओके, तो फर्स्ट यस, okay. So if you have no doubt, then you can write your first step. What is it? State Fourier series expression with value of L. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, we know the Fourier series f of x is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. यहाँ पे nx क्यों आया, क्योंकि 0 to 2 पाई है इसीलिए. ओके, अब l मैंने क्या फाइंड किया, l इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए पाई. ओके, तो ये इतना आपका स्टेप नंबर 1 है. दिस इज योर स्टेप नंबर 1. एनी डाउट इन स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट? एनी डाउट इन स्टेप नंबर 1? नो? ओके, देन स्टेप नंबर 2, फाइंड a0. तो फाइंड a0 के लिए क्या करेंगे, बाय ऑयलर्स फॉर्मूला a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2 पाई f ऑफ x dx. ओके, जो भी आपको इंटरवल दिया है वो यहाँ पे आपको जनरल इंटरवल यहाँ पे पहले मेंशन करना है. 1 अपॉन पाई, पाई मीन्स 1 अपॉन एल मीन्स 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2 पाई f ऑफ x dx. Now you can substitute your interval, that means 1 upon pi integration 0 to 2 pi f of x is your e raised to minus x. So I substitute here f of x is equal to e raised to minus x dx. Okay, now 1 upon pi as it is. Now e raised to minus x का इंटीग्रेशन क्या होगा, so e raised to minus x इसका इंटीग्रेशन होता है e raised to minus x upon minus 1. Okay, you know that because integration of 1 minute, yes, integration of e raised to ax dx. What is the formula for integration of e raised to x dx? It is e raised to ax upon a. Am I right? Okay, so here a is your minus 1, so minus e raised to minus x 0 to 2 pi. Now I substitute first 2 pi, so 1 upon pi is as it is. Okay, e raised to minus 2 pi, that means minus e raised to minus 2 pi is your first term, minus 0, that means minus minus plus e raised to 0. So if you solve it, then we get 1 upon pi minus e raised to minus 2 pi plus e raised to 0 gives you 1. Okay, so any doubt in a0 student? No, sir. ओके, मुझे सबका आंसर चाहिए हाँ, क्योंकि इसमें मुझे आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाना है. क्योंकि अगर आपने एक एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ लिया, इफ़ यू अंडरस्टैंड फर्स्ट एग्जांपल, देन यू कैन डू होल यूनिट इन गुड वे. ओके, आप पूरा यूनिट आप आराम से कर सकते हो, लेकिन पहला एग्जाम्पल जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा. इसलिए मैं आपका सभी का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए. ओके, गिव मी योर रिस्पॉन्स. आर यू अंडरस्टैंड a0? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जिसको भी डाउट है प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करो, है ना. अगर आपको डाउट लग रहा है और रिपीट करने की ज़रूरत है मुझे बताओ, तो मैं आई विल रिपीट इट डेफिनेटली. ओके, सो a0 हमारा कंप्लीट हो गया, वो सिंपल था. नाउ वी गो फॉर an. व्हाट इज द फॉर्मूला, ऑयलर्स फॉर्मूला फॉर an? an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई c टू c प्लस 2 पाई f ऑफ x cos nx dx. नाउ आई रिप्लेस f ऑफ x. व्हाट इज माई f ऑफ x? e रेज टू माइनस x cos nx dx. ओके, अब ये आप पहले नोटबुक में लिख दीजिए, राइट डाउन दिस 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई e रेज टू माइनस x cos nx dx. लिख दिया? ओके, अभी इसीलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये जो है हम कंपेयर करेंगे कौन सी फॉर्मूला के साथ. यू हैव दिस फॉर्मूला, हाँ, फॉर्मूला नंबर 6. ओके, इंटीग्रेशन a टू b e रेज टू ax cos bx क्या हो रहा है मेरा, e रेज टू x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx, और लिमिट जो भी दिया है वो हम बाहर रखेंगे. ओके, तो सेम वे इफ यू कंपेयर आवर एक्सप्रेशन विथ integration e raised to ax into cos bx dx. Okay, so what is my a?
What is my a here? If you compare both this expression, -1. yes, a is equal to -1. Okay, and what is my b? N. 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 Okay, तो अब इसकी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. तो व्हाट इज माय फॉर्मूला फॉर दिस वन? सो e raised to ax डिवाइड बाय a square plus b square bracket, okay, a cos bx plus b sin bx. This is my formula, okay, for this integration. Okay, now I only substitute the value of a and b. That is my integration. So यहाँ पे मेरा 1/pi as it is आ गया. Now I put a की जगह पे -1. That means I put a is equal to -1 here. So e raised to -x divided by 1 plus n square. 1 plus n square means -1 whole square plus b means n. So n square. -1 whole square means 1. So 1 plus n square. Bracket -1 into cos b. B means n. So cos nx plus b. What n is my, sorry, b is my n. So n sin nx. एंड जो लिमिट था वो मैंने बाहर रख दिया. अब ये कितने लोगों को नहीं पता चला? रेज योर हैंड. ये स्टेप जो मैंने किया वो कितने लोगों को नहीं पता चला? ओके, गुड. निहिर एंड यस 503. ओके, आई रिपीट इट. ओके, फर्स्ट you have to compare these two expression to integration. Okay, so integration e raised to x cos bx dx ये था मेरा, और ये मेरा है e raised to -x cos nx dx. अब a and b तक तो पता चला कि नहीं? आप दोनों को a and b तक पता चला कि नहीं? मिहिर एंड 503. ओके, सो अब जो उसका आंसर है वो यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना है. अब a की जगह पे मैं -1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरा यही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? यू कैन सी हियर e raised to -x डिवाइड बाय -1 होल स्क्वायर प्लस b मीन्स मेरा n है, सो n स्क्वायर हो गया. नाउ a इज माय -1, सो cos bx मीन्स n x प्लस b की जगह पे मुझे n रिप्लेस करना है, sin nx. नाउ गॉट यू? 503 Yes, and sir. Nihir. Okay, and what about 503? Are you getting? Yes, sir. Okay. बस मैंने क्या किया यहाँ पे? I substitute the value of a and b only in my formula. Okay, so I substitute here and you have limit 0 to 2 pi. Now I substitute limit 1 by 1. So I first substitute 2 pi in whole expression. So 1/pi, 1 plus n square is outside because it is constant for x. Okay, so bracket e raised to -2 pi bracket minus cos x की जगह पे आपको 2 pi रिप्लेस करना है. दैट मीन्स n into 2 pi plus n sin n into 2 pi minus I substituting 0. So e raised to 0 minus cos n into 0 plus n into sin 0. Okay, now any doubt? अगर आपको डाउट है ये स्टेप में तो प्लीज रेज योर हैंड. आई रिपीट इट. एनीबडी? I substitute the limits. Okay, okay, no doubt. Okay. Then we go for next step. Okay, now what is the value of cos n 2 pi? मैंने आपको बताया था, 1 मिनट, आई चेंज माई इंक. यस, ओके, मैंने आपको अभी बताया था कि cos n pi क्या हो रहा है? cos n pi, what is my value of cos n pi? -1 raised to n. तो यहाँ पे मैं cos 2n pi करूँ तो what is it? क्या आएगा? दिमाग चलाना पड़ेगा, हाँ, नहीं तो नहीं पता चलेगा. cos 2n pi will be क्या होगा? 1. -1 raised to 2n. Okay, and -1 raised to 2 is even. Here 2n is even, so we get 1. Understand? Okay, तो
तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, दैट मीन्स माई फर्स्ट टर्म विल बी 1, ओके, माइनस है तो -1 हो गया टोटल, ओके। नाउ व्हाट इज साइन 2n पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2n पाई? 0. 0, बिकॉज साइन n पाई ऑलवेज क्या होता है 0, तो साइन 2n पाई लेंगे तो पर भी क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0, ओके। नाउ cos 0 1, तो इट गिव्स -1, ओके, बिकॉज माइनस तो आगे है ही, एंड साइन 0 0. 0, okay. If I open this bracket, then I got 1 upon pi 1 plus n square, okay, वो तो बाहर ही था, e raised to -2 pi as it is, उसके साथ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो मैंने माइनस बाहर रख दिया, माइनस, और ये जो था वो माइनस माइनस प्लस, e raised to 0 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, क्लियर, एंड दैट इज माई an. Any doubt in an? Please raise your hand if you have any doubt. No, sir, no doubt. Hari No, says no doubt. Good. Okay. Okay. No doubts. Okay. Same way we can do bn. Okay. अब bn फाइंड करते हैं. चलो सेम वे, सिर्फ चेंज क्या होगा bn के लिए, you can see here change is only in place of cos we have sin, nothing else, okay. So bn 1 upon pi c to c plus 2 pi f of x cos nx dx is my formula for bn. I am substituting the value of f of x. What is my f of x? F of x is e raised to minus x, so 1 upon pi integration 0 to 2 pi is my limit, e raised to minus x sin nx dx, okay. Now same formula for e raised to x into sin bx, ओके, तो यहाँ पे साइन है तो फॉर्मूला में क्या चेंज हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे साइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पे कॉस हो जाएगा, डन, दैट इज दी अवर फॉर्मूला, ओके। नाउ बिफोर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला वी हैव टू फिक्स ए एंड बी, ओके। तो ए क्या होगा इसके लिए मेरा, चलो कौन बताएगा, व्हाट इज माई ए हियर, -1. -1, and what is my b, N. n, सेम a and b here, ओके। मैंने बोला कि कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ cos एंड साइन की पोजीशन चेंज है, ओके। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू n, तो यही फॉर्मूला आएगा सेम टू सेम, e रेज टू -x अपॉन -1 होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ब्रैकेट -1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन nx प्लस n इंटू कॉस nx हो जाएगा, डन, ओके। सो यहाँ पे माइनस साइन nx माइनस n कॉस nx एंड लिमिट है 0 to 2 पाई, ओके। सो 1 अपॉन पाई 1 प्लस n स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया है। नाउ आई एम सब्सटीट्यूटिंग e रेज 2 पाई एंड देन आई गो फॉर 0, सो e रेज टू -2 पाई माइनस साइन n 2 पाई माइनस n कॉस n 2 पाई माइनस सेकेंड लिमिट मीन्स माइनस e रेज टू 0 माइनस साइन 0 माइनस एन कॉस 0, ओके। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट किया है इसलिए मैं सीधा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ओके। नाउ वी थिंक अबाउट द ईच टर्म, सो व्हाट इज माय साइन 2n पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस साइन 2n पाई, 0. 0 इट गिव्स 0, cos 2n पाई 1 1. हाँ, means -1 raised to 2n and it gives 1, okay. Now what is my sin 0, 0. 0, and what is my cos 0, 1. 1, okay. So if I substitute all these value then we get 1 upon pi 1 plus n square as it is, यहाँ पे e रेज टू -2 पाई है वो मैंने e रेज टू -2 पाई एज इट इज रखा है, अब ये तो 0 है, अब ये माइनस और 1, सो 1 इंटू n हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस n मैंने आगे लिख दिया है, ओके। माइनस ये 0 है, ये माइनस है, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 1 इंटू n,
सो यहाँ पे n हो जाएगा. सो माई फाइनल आंसर इज n अपॉन पाई 1 प्लस n स्क्वायर माइनस ई रेज टू माइनस 2 पाई प्लस 1. ओके, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे तो जो n है वो मैंने कॉमन ले लिया है. डन. तो n कॉमन ले लूँगा तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे ई रेज टू माइनस 2 पाई बचेगा. वो माइनस 2 पाई को मैंने पहले लिखा एंड 1 को पीछे लिखा. एनी डाउट इन bn डियर स्टूडेंट? इफ यू हैव डाउट देन प्लीज रेज योर हैंड. No doubt, sir. Okay, what about others? Please, quick response. No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt. No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt. Okay, good. Now, what is my next step? First number step is completed. Second number step is also completed. Third number step is also completed. And fourth step already done. Then what is my last step? And it is step number 5. Substitute all values, means I am substituting the value of a0 here, I am substituting the value of an here, and I am substituting the value of bn here. So what is my final answer? So f of x is my left hand side is f of x and f of x is my e raised to minus x. So I put here e raised to minus x equal to, what is my a0? A0 is my 1 upon pi, but I have to multiply by 1 by 2. So 1 upon 2 pi minus e raised to minus 2 pi plus 1 is my first step. So here 1 upon 2 pi minus e raised to minus 2 pi plus 1 plus summation n is equal to 1 to infinity. ये ब्रैकेट करना मत भूलना. ओके, अगर ये भूल गए तो मार्क्स कट जाएंगे. ओके, नाउ what is my value of a0? A0 is my 1 upon pi minus e raised to minus 2 pi plus 1. So I substitute here 1 upon pi 1 plus n square minus e raised to minus 2 pi plus 1 into cos nx. Cos nx कहाँ से आया? It is in my formula. So I multiply by that cos nx. Now I am substituting the bn into sin nx. So bn means I got it n upon pi 1 plus n square minus e raised to minus 2 pi plus 1 into sin nx. Okay, which is required Fourier series. Any doubt in this example, student? It is lengthy, but you can do. Okay, any doubt? No. No. Then what about others? No doubt, sir. 503. No, No sir. doubt, sir. No doubt. Okay. Then try for second example. What is it? Obtain the Fourier series to represent f of x is equal to x square in the interval 0 to 2 pi. Okay, this is the another way to write down. Okay, 0 to 2 pi. Bracket 0 to 2 pi means 0 and 2 pi included. That means 0 less than equal to x less than equal to 2 pi. Understand? Okay. So here first statement in equality form, in less than form, and here you have less or equal to form. Okay, so there is no issue. You have to go through the steps number 1 2 3 4 and 5. Done. So try for this one. Okay, I am here if you have any problem, but try. Because if you are not doing it, then you have no any idea. Try it. Darsil, are you doing? (19E001). Are you doing it? Yes, sir. Okay. 19E002. Yagnesh. Yes, sir. Prithviraj Singh. Yes, sir. Satish. Yes, sir. Okay. Harish. Yes, sir. Soumya.
Sir, actually, I am out, so I will repeat the lecture and do it again. Okay, okay. But you are with us or not? Sorry, sir. You are with us Yes, sir. for full session, or you can leave within 5 2 minutes. No, no, sir. Full session. Okay. Hirva. Yes, sir. Okay. Kanchan. Yes, sir. Nihir. Yes, sir. Nishita. Are you doing? Yes, sir. Okay. Vidhi. Vidhi, are you Yes, doing? sir. Okay. Yasraj Singh. Yes, sir. Yes, sir. Jai. Yes, sir. Dromil. Yes, sir. Are you doing? Yes. Suresh. Are you there? Yes, sir, doing, sir. Okay. Paras. Paras, are you doing? D2D 500. Are you doing? Okay. 503. Yes, sir. Trying Okay, it. okay, trying it. Paras. Okay, Suresh, please inform Paras. Huh? Paras, you can post, huh, in chat box. Okay, Yes, sir. sir. Okay, okay, yes, Paras is there. Are you doing Paras? Yes, sir. Okay. Okay. What you got? A0. What is the value of A0? Anybody? We go with step by step. Pi square by 3. Pi square by 3. Okay. We check 8, here. 8 pi, Okay, pi pi square square by by 3. 8. Okay. We 8 can. pi 8 square by by 3. 3 pi. Okay, okay, no problem. You can see here. What is my first step? The Fourier series of f of x is given by f of x is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. That is my equation 1. Where, okay, ये आप नहीं लिखेंगे अभी तो चलेगा. What is my requirement? L. What is my L here? अगेन पाई, क्योंकि 0 to 2 पाई है तो मैंने जैसे आगे सिखाया था इसे आप L फाइंड कर सकते हो. ओके, तो दैट इज द फर्स्ट नंबर स्टेप. ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट डन इट? कितने लोगों ने ये किया है? रेज योर हैंड. यस, गुड 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 गुड. ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डन इट. Good. Okay. Then we go for the step number 2. Okay, step number 2. So I start with the formula of A0. So A0 is equal to 1 upon pi integration 0 to 2 pi x square dx. So 1 upon pi as it is. What is my integration of x square? It will be x cube by 3. X cube by 3 is the integration of x square, and I substituting the limit 0 to 2 pi. If you solve it, that means you get 1 upon pi 2 pi cube डिवाइड बाई 3 माइनस 0, क्योंकि x की जगह पे ही 0 रखना है तो 0 by 3 दैट मीन्स 0. नाउ इफ यू ओपन दिस दैट मीन्स 2 क्यूब इज 8. सो 8 पाई क्यूब. पाई क्यूब में से एक पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. ओके, यू कैन कैंसिल इट हियर 1 पाई. सो वी हैव पाई स्क्वायर. ओके, डिवाइड बाय 3. दिस इज योर फाइनल आंसर. हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट इट? इज A0? Okay, good. It's good. Students are doing it. Okay. खाली गाली मत कर देना, रेज हैंड, नहीं तो मैं कभी भी पूछ सकता हूँ. ऑनलाइन स्ट्राइक करूंगा मैं कैमरा ऑन करवाने के लिए. ओके, नाउ वी गो फॉर an. ओके, चलो सब मिलके an करते हैं. तो an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई x स्क्वायर
Okay, what is my formula? Formula is 1 upon pi 0 to 2 pi f of x cos nx dx. बट हम क्या करेंगे, c to c plus 2 pi के लिए पहले लिखेंगे f of x cos nx dx. Okay, 1 upon pi, this is your first formula. Then second step is here, 1 upon pi 0 to 2 pi f of x cos nx dx. Now I am substituting the value of f of x. What is my f of x? F of x is your x square. So 1 upon pi 0 to 2 pi x square cos nx dx. Okay, 1 upon pi. Now please focus in this formula, Leibniz rule. So first my u is x square. So यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, all students are here. So u and v. Okay, so u मेरा x स्क्वायर है and v मेरा cos nx है. मैंने इसे क्यों uv लिया? हम जब भी uv रूल अप्लाई करते हैं, जब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, तो वी हैव कंसीडर u विच विल बी वैनिश. ओके, जो भी टर्म लेंगे वो वैनिश होना चाहिए. मीन्स u अगर हमने x स्क्वायर लिया तो आप देखेंगे तो 2 या 3 टर्म्स के बाद वो जीरो हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, इसलिए उसको u बोलेंगे. अब cos का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करो वो चलता ही रहेगा, उसको v बोलेंगे. डन. So first u is as it is, so x square is as it is. What is my integration of cos nx? Integration of cos nx क्या होता है, कौन बताएगा? Minus sin nx by n. माइनस नहीं आएगा. ओके, तो साइन एन, यस, साइन एन एक्स अपॉन एन. ओके, तो हियर आई मेंशन हियर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस जो सेकंड टर्म है उसका माइनस. अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मीन्स यू डैश जो बुला है वो इसका डिफरेंशिएशन. तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? इट इज 2x. सो यहाँ पे 2x रख दिया. नाउ आई इंटीग्रेट दिस वन. इंटीग्रेशन ऑफ v1 इज माई v2. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स अपॉन एन? साइन एन एक्स अपॉन एन. तो अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एन तो आउटसाइड चला जाएगा. इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बचा. तो व्हाट इज माय इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स? minus cos nx upon यस, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन. तो दिस इज माय माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर. आई सब्स्टिट्यूट हियर. ओके, नाउ अगेन थर्ड टर्म प्लस. तो प्लस 2x का डेरिवेटिव. व्हाट इज माय डिफरेंशिएशन ऑफ 2x? इट विल बी 2. ओके, नाउ अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन. सो इंटीग्रेशन ऑफ cos nx अपॉन एन स्क्वायर, लेकिन माइनस के साथ. ओके, तो इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन dx आएगा. इंटीग्रेशन होगा माइनस अपॉन एन स्क्वायर तो रहेगा एज इट इज. अब cos nx का इंटीग्रेशन. तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन. ओके, तो टोटल इट इज एन क्यूब. तो माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब. नाउ नेक्स्ट टर्म सोचते हैं. तो नेक्स्ट टर्म आएगा माइनस. अब 2 का डेरिवेटिव. 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0. इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया. ओके, क्योंकि नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो रहा है? 0. और उसके बाद वाले जितने भी सारे टर्म होंगे वो सारे भी 0 ही रहेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो 0 का डेरिवेटिव 0 रहेगा. ओके, एंड अब आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 0 to 2 pi, दैट इज माई लिमिट. ओके, अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्योंकि मैं आई विल इरेज दिस ऑल रिटन हियर. No, sir. नो, Nihir has no doubt. Okay. No, sir. No. No, sir. no sir. No, sir. What about D2D? No, sir. I am expecting your answer. 500 and 503. Doubt? Five zero, 500. Any doubt? 503 doubt? सर वो आपने जो वो डेरिवेटिव का कहा ना, हाँ, सिर्फ वो मतलब जो लास्ट पार्ट बोला ना आपने, वो समझ नहीं आया. ये साइन एन एक्स अपन एन क्यूब वाला. हाँ. ओके ओके, देखो इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है. आई वांट टू इंटीग्रेट दिस वन. सो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा. यहाँ तक रेडी? 503 ये सही है यहाँ तक? ओके, नाउ माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर आउटसाइड.
वो कांस्टेंट है. ओके, अब आई हैव ओनली cos nx dx. Yeah. Okay, now if you integrate cos nx, so what is my integration? Sin nx upon n. Yeah. Okay, so my final answer is -1 upon n cube into sin nx. Am I right? Yeah. So this is my third term, minus sin nx upon n cube. Okay. Got it? Okay. Yeah. Okay. 500. Any doubt? No, sir. Okay. Then we go for Bn. Okay, I erase all these. Sorry, no go for Bn. First we complete it. Okay. Okay. Now you can see here. I am substituting first 2 pi. Okay, so whenever you complete this step, then focus on sine term. So how many terms for sine in this step? 2. ओके, तो उसको आपको देखना है एक बार, और वो आई थिंक 99.99% वो जीरो ही हो जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, आई चेंज माई इंक. ओके, यहाँ पे देखो साइन एन एक्स, उसकी जगह पे आप 2 पाई रखेंगे तो सबका ध्यान यहाँ पे, नहीं तो नहीं पता चलेगा कि मैंने कैसे कर दिया. तो साइन के लिए है, तो साइन एन इंटू 2 पाई हो जाएगा वो, डिवाइड बाय एन. अब साइन 2n पाई क्या होता है? जीरो. ये जीरो हो गया. अब मैं लिमिट, सेकंड लिमिट रखूंगा उसी में. हाँ, तो मेरा क्या हो जाएगा? साइन 0 अपॉन एन हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? जीरो. तो दोनों लिमिट के लिए वो स्टेप क्या है? जीरो. तो उसको फिर से नीचे लिखने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टैंड? सेम वे हियर यू कैन डिफाइन साइन एन एक्स, तो साइन 2n पाई 0, साइन 0 0, तो ये भी स्टेप वहां पे वैनिश हो जाएगा. डन? क्लियर? मैंने जो अभी बताया वो आप सबको पता चल गया या रिपीट करूं? स्टूडेंट, got it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now, if you substitute 2 pi and 0, then sign terms will be 0. Now we are focusing only on middle term. So 1 upon pi 0 0 तो हो गया ये, माइनस. ओके, तो यहाँ पे आप 2 pi सब्सटीट्यूट करो तो माइनस 2 इंटू 2 पाई इंटू माइनस कॉस 2n पाई डिवाइड बाय एन स्क्वायर. ओके, माइनस सेकंड टर्म सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 0 सब्सटीट्यूट करना है तो x की जगह पे 0 रखना है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. क्लियर? ओके, तो अब सिर्फ एक ही टर्म बचा हमको डिस्कस करने के लिए, तो उसी को करते हैं. चलो, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, सो 4 पाई कॉस 2n पाई मीन्स कॉस 2n पाई is equal to minus 1 raised to 2n again. So minus 1 raised to 2n is 1. So here 4 pi into 1 divided by n square. Okay, if all others are 0. Okay, so if you multiply 1 upon pi to this, so pi will be cancel out and we get 4 upon n square. Done? So this is your an. Any doubt in an? No, sir. No? Okay. No, sir. Okay, then we go for Bn. Same situation, same expression with sin. Okay, यहाँ पे पूरा an किसके साथ था? cos. यहाँ पर आप सीधा भी लिख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे cos है वहाँ पे क्या करेंगे हम? sin, है ना? एंड जहाँ पर भी sin है वहाँ पे cos. लेकिन ध्यान सिर्फ माइनस का रखना है आपको, वो थोड़ा कीप इन योर माइंड. ओके, सो Bn मैंने स्टार्ट किया. Bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स होगा आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. ओके, सो 1 अपॉन पाई. अगेन यहाँ पे देखो, आप कंपेयर करेंगे तो पर भी आपको पता चलेगा. अब एक्स स्क्वायर मेरा u है एंड साइन एन एक्स मेरा v है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, u एज इट इज.
अब साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस प्लस माइनस प्लस आएगा, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस तो मेरे पास था ही तो मैंने माइनस रखा। अब कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एन एक्स अपॉन एन, लेकिन एक एन ऑलरेडी था तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड टर्म है प्लस 2x का डेरिवेटिव होगा 2, अब माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि कॉस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है इसलिए वो प्लस हो गया, कॉस एन एक्स अपॉन एन होगा एंड एन स्क्वायर इज दैट, सो एन स्क्वायर इंटू एन, एन क्यूब हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म आपका आएगा माइनस करके 0 क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0, तो आई स्टॉप हियर एंड 0 to 2 पाई मेरी लिमिट है। अगेन मैंने जैसे बोला था कि ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद फोकस ऑन साइन, सो साइन के ऊपर आप फोकस करेंगे तो साइन यहाँ पे हो जाएगा 2n पाई माइनस साइन 0, तो साइन 2n पाई विल बी 0 एंड साइन 0 0, तो दोनों केस में दोनों लिमिट में ये 0 हो रहा है। ओके, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यही दोनों टर्म के बारे में ही सोचेंगे। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट, एनीबडी? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, गुड। sir. नो Okay. सर। नाउ वी गो फॉर 2 पाई। ओके, तो पहले 2 पाई सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखना है ना, तो फिर हम पहले मेरा आएगा 2 पाई होल स्क्वायर इंटू माइनस कॉस 2n पाई डिवाइड बाय n, फर्स्ट टर्म मेरा ये हुआ। अब मैं लास्ट टर्म में 2 पाई रिप्लेस कर रहा हूँ तो प्लस 2 कॉस 2n पाई डिवाइड बाय n क्यूब। अब 0 रिप्लेस कर रहा हूँ तो पहले माइनस आएगा, सो माइनस इंटू 0, सो ये तो 0 हो गया पूरा, और ये तो माइनस था तो वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन वो माइनस कॉस 0 डिवाइड बाय n हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू कॉस 0 डिवाइड बाय n क्यूब। अंडरस्टैंड? ये पूरा पता चल गया। मैंने क्या किया, 2 पाई एंड 0 रिप्लेस किया दोनों ही दोनों फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में। एनी डाउट इन दिस? यस, कौन No, बोला? No, किसी को डाउट है तो बता देना। ओके ओके, नाउ आई एम expanding it, so 2 pi square it gives 4 pi square, minus is there so it is minus cos 2n pi. What is the value of cos 2n pi? 1, so 1 upon n हो गया वो। अब ये तो 0 था वो मैंने कंसिडर नहीं किया है। ओके, नाउ सेकंड टर्म प्लस 2 cos 2n pi means 1, 1 upon n cube, that is my third term। अब 0 के लिए है तो 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा 0। अब माइनस 2 दैट मीन्स माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एन क्यूब, सो 2 अपॉन एन क्यूब हो गया। अब मेरा आप देखेंगे तो एक्चुअली आंसर क्या हुआ, तो 1 अपॉन पाई माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन क्यूब, एंड ये है वो माइनस लास्ट वाला माइनस 2 अपॉन एन क्यूब। तो ये प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम आई राइट? ये प्लस एंड माइनस कैंसिल, प्लस माइनस है इसलिए। अब बचा कितना, तो ये, अब इसमें से भी पाई कैंसिल हो रहा है, तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, माइनस 4 पाई बाय एन। अंडरस्टैंड? क्लियर? एनी डाउट इन बी एन स्टूडेंट? No, sir. Okay, now what is No, my sir. final step? I want to substitute the value of a0, an and bn in equation 1. So what is my Fourier series? The required Fourier series is x square is my f of x, है ना, f of x मेरा x square था, तो x square plus a0 by 2, तो a0 कितना था मेरा 8 pi square by 3, और उसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 pi square by 3, इट इज माई फर्स्ट टर्म, है ना, ये हो जाएगा 4 pi square by 3 प्लस समेशन। ओके, तो समेशन तो रहेगा। अब an क्या है मेरा 4 अपॉन एन स्क्वायर, तो मैंने वो 4 अपॉन एन स्क्वायर रिप्लेस कर दिया। कॉस एन एक्स तो मेरा था ही फॉर्मूला में, माइनस सॉरी प्लस आएगा, लेकिन बी एन माइनस है, माइनस 4 पाई एन, दैट्स वाई आई एम सब्सटीट्यूटिंग माइनस 4 पाई बाय एन
and sine is in my formula, so sine nx. This is the required Fourier series for f of x is equal to x square in interval 0 to 2 pi. Any doubt in this example? नो सर. Okay. No, नो अब सर. अब कुछ जो बच्चे हैं वो स्मार्ट वर्क करने जाएंगे. स्मार्ट वर्क क्या करेंगे, वो जो 1/n यहाँ पे है ना 4/n उसको कॉमन ले लेंगे. 4/n समेशन और जो पूरा बाकी बचता है वो लिखेंगे. लेकिन भाई यहाँ पे देखो समेशन किसके ऊपर है, n के ऊपर, तो आप उसको कॉमन नहीं निकाल सकते. इट इज वेरी डेंजर एंड यू लॉस योर मार्क्स. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. यहाँ पे कॉमन है, मुझे भी पता चल रहा है कि 4/n कॉमन है, मैं उसको कॉमन निकाल सकता हूँ, लेकिन समेशन के बाहर नहीं रख सकता हूँ ड्यू टू माई समेशन इज डिपेंड ऑन n. एनी डाउट? क्लियर? Yes, sir. यस सर.